ایک جو درخت ہے اس کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تم نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ بہت سے لوگ خدا کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں خدا نے درخت ہی کیوں ایسا لگایا جس سے منع کرنا پڑا؟ خدا نے ایسا درخت کیوں لگایا جس سے آدم اور حوا کو منع کیا گیا کہ آپ نے پھل نہیں کھانا؟ میرے عزیزو، خدا کے آئیڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ جب خدا نے انسان کو بنانے کا پلان کیا تو خدا نے کہا انسان آزاد مرضی ہوگا۔ انسان کیا ہوگا؟ آزاد مرضی۔ انسان کیا ہے؟ آزاد مرضی۔ اس کے پاس پاور آف چوائس، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کیا نہیں۔ اگر خدا آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھتا اور ان سے کہتا کہ آپ جائیں جو مرضی کھائیں پیئیں، ان کے پاس اپنی پاور آف چوائس، جو فیصلہ کرنے کی اسپرٹ خدا نے ان کو دی تھی، جو چناؤ کا حق دیا تھا، اس کی پریکٹس نہیں ہونی تھی ان پہ۔ مثال کے طور پر ہم آپ سے کہتے ہیں تسلیم بھائی آپ جہاں بیٹھے آپ نے ہر دفعہ یہیں پہ بیٹھنا، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ پھر میں کہتی ہوں آپ آزاد مرضی کی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آزاد مرضی ہے، میں تو ان کو ہلنے بھی نہیں دے رہی۔ خدا چاہتا تھا آدم اور حوا اپنی چوائس کے ساتھ میری فرما برداری کریں۔ جس انسان کو میں نے پیدا کیا وہ روبوٹ نہیں ہے کہ میں جو کہوں وہی کرے، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ محبت میں فرما بردار ہو۔ اس لیے خدا نے اس کا ایک اور بھی بہت سی اسٹڈیز ہے، وہ جو حیات کا درخت تھا وہ کیا تھا، نیک و بد کی پہچان کا درخت، اس کا کیا مقصد تھا، وہ علیحدہ ایک اسٹڈی ہے۔ لیکن ان کو ایک پاور آف چوائس کی پریکٹس دینا بڑا ضروری تھا کہ وہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کا موقع آنا ضروری تھا، تاکہ پتہ چلتا کہ وہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے ابلیس یہ چاہتا تھا کہ اس چیز کا استعمال کرتے ہوئے وہ حوا اور آدم کے دل میں یہ بات ڈال سکے کہ خدا بھلا نہیں ہے، خدا کی آزادی میں خوش نہیں، خدا کی خوشیوں میں خوش نہیں، خدا کی تسلی میں خوش نہیں، خدا کے اطمینان میں خوش نہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا دوں خدا کی خوشیوں میں خوش ہوں، خدا کی تسلی میں خوش ہوں، آپ کے اطمینان میں رہنے میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ زبور میں کہتا ہے خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت وہ بھلا ہے۔ گاڈ از گڈ، وہ اچھا خدا ہے، کیونکہ اس نے آج تک جو کچھ بھی کیا اس سے ہمیں گناہ کے باعث جو نقصانات ہوئے وہ خدا کی مرضی نہیں، وہ خدا کی will نہیں تھی کہ آپ جب گناہ کریں تو آپ اتنی مصیبتوں میں جائیں۔ وہ گناہ کے نتائج ہیں جو آج انسانیت بھگت ہے۔ سو خدا اچھا ہے، خدا بھلا ہے، اور ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کے خلاف ہوتے۔ اس نے آدم اور حوا سے بھی یہی کہا کہ خدا بھلا نہیں ہے۔ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو خدا نے ان سے کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و معمور۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے زمین کا اختیار کس کو دیا تھا؟ آدم کو دیا۔ یہ اتھارٹی ہے آپ کے پاس، کھائیں پیئیں پھلے بڑے، آپ کی نسلیں آئیں گی اور وہ اس پوری زمین کو معمور کریں گی۔ خدا نے تو کہیں بھی کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو آدم اور حوا سے چھپایا تھا یا ان سے علیحدہ رکھا تھا یا ان کو کوئی اختیار نہیں دیا تھا۔ لیکن ابلیس آدم اور حوا کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ خدا اچھا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند میں مسرور ہے، زبور 37:11 میں آئے خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی کیا پوری کرے گا؟ آپ کے دل میں جو خواہشات ہیں وہ ان کو کیا کرے گا؟ کیونکہ خدا کی مرادیں پوری کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں۔ ایک اور زبور 84:11 میں لکھا ہے کیونکہ خداوند خدا آفتاب ہے اور ستر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا۔ خدا فضل بھی بخشے گا اور جلال بھی۔ فضل کے وسیلہ سے آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا اور جلال کے وسیلہ سے آپ اس کے ساتھ ابدیت میں داخل بھی ہوں گے۔ پھر لکھا ہے وہ راز رو سے کوئی بھی نعمت باز نہ رکھے گا۔ جو راز باز ہے، جو راز رو ہے، خدا اس سے کوئی بھی نعمت کبھی بھی باز نہیں رکھے گا۔ جتنی بھی بہتر اور اچھی نعمتیں ہیں خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ اب ابلیس اس بات میں کامیاب ہوتا ہے کہ وہ حوا کے دل میں یہ بات ڈالے کہ خدا بھلا نہیں ہے۔ اس سے پہلا جھوٹ حوا کے ساتھ کیا بولا کہ خدا بھلا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا خداوند کا کلام فرماتا ہے خدا کیا ہے؟ بھلا ہے۔ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت اب بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا خدا بھلا ہے، ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ اچھا خدا ہے، وہ ٹھیک خدا ہے۔ ہاں جب حالات ہمارے اور میں بھی ہمیں سے سب نہیں تو کچھ لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ ضرور ہوا گا، یہ سوال ہمارے ذہن میں کبھی آیا کہ خدا اگر اتنا اچھا تو میری زندگی میں ایسے کیوں؟ ہمارا اگر خدا اتنا محبت والا تو میرے ساتھ یہ
प्रॉब्लम्स क्यों हैं। हम ऐसा कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी लम्हे में हम में से किसी ने ऐसा जरूर सोचा होगा, और ये ख्याल मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इब्लीस की तरफ से। आज तक जितने भी झूठ बोले गए, जितने भी झूठ वजूद में आए, वो सिर्फ और सिर्फ इब्लीस की तरफ से हैं। वो सारे के सारे झूठ किसकी तरफ से हैं? इब्लीस की तरफ से हैं। खुदा जब जब हमें कहता है तो खून ना करना, तो चोरी ना करना, तो ज़िना ना करना, इसका मतलब ये खुदा आप पर अपनी अथॉरिटी जमाना चाहता है। इसका मतलब है खुदा आपको बुराई से बचाना चाहता है, खुदा आपको किसी गलत काम में पड़ने से महफूज करना चाहता है। और जब जब खुदा कहता है तो ये करना, तो मेरी इबादत करना, तो ऐसे करना, तो इसका मतलब खुदा आपको आजाद रखना चाहता है। हमें तो हमारा खुदा के हवा के साथ बोला वो ये था, गॉड इज नॉट ट्रूथफुल। खुदा सादिक नहीं, खुदा सच्चा नहीं। कैसे? आइए मेरे साथ निकालें इसी चीज से। तुम्हारा खुदा कह रहा है वो झूठ है, जो बात तुम्हारा खुदा कह रहा है वो क्या है? झूठ है। तो पहला उसने हवा के दिल में ये ख्याल डाला कि खुदा भला नहीं है। दूसरी बात उसने खुदा के अगेंस्ट हवा के सामने रखी, और वो ये कि खुदा सच्चा नहीं है, जो बात खुदा कह रहा है वो झूठ है। और सिर्फ हवा नहीं, मैंने कहा आज भी हमें से बहुत से लोगों के साथ इस तरह बातचीत करता है। लेकिन उसने पहले हवा के दिल में शक डाला कि खुदा भला नहीं है। क्या खुदा ने सारे दरख्तों का फल खाने से मना किया? हवा को मंफी सोचने पर मजबूर किया, और हवा ने सोचा, कहा नहीं हम खाते हैं, लेकिन एक दरख्त के पर एक दरख्त है जिसकी बाबत खुदा ने हमें मना किया। जैसे ही शक पैदा हुआ, याद रखिएगा कोई भी शख्स आपके जहन में खुदा की हाकमियत, खुदा की पाकीज़गी, खुदा का लापता होना, खुदा की मोहब्बत, खुदा की शफ़क़त, खुदा की हाकमियत के बारे में आपके दिल में शक पैदा करे, वो इब्लीस की तरफ से। वो किसकी तरफ से है? इब्लीस की तरफ से है। कोई भी खुदा के बारे में मनफी सोच जब आपके दिल में आए, वो किसकी तरफ से है? इब्लीस। ये इब्लीस है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, खुदा ने ऐसे क्यों किया, खुदा को क्या जरूरत थी भी ऐसा करने की। वो खुदा है, हम मखलूक हैं। ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमें आज़ाद नसीब पैदा किया। ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमें पावर ऑफ चॉइस दी है। और आज इब्लीस इसी झूठ के साथ बहुत सी नस्लों को तबाह कर रहा है, बहुत से लोगों को खुदा से दूर कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई किसी डिनोमिनेशन से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना अमीर शख्स है, कितना असर और रसूख रखता है। हमें इस बात पर गौर करना है क्या वो खुदा के खिलाफ है या खुदा के साथ है। और अगर कोई भी ऐसी बात करे जिसमें खुदा के हुक्म और खुदा की बातों के आगे सवालिया निशान बन जाए, वो इब्लीस की तरफ से है। वो किसकी तरफ से है? आपके दिल में जब कभी शक पैदा हो, वो किसकी तरफ से है? इब्लीस की तरफ से है। और वो इसको बड़ी माहिराना तौर पर वजूद में लेकर आता है। उसके इसी तरीकेकार की वजह से दुनिया में बहुत से ऐसे थॉट्स या मजहब भी, आप मजहब का ही नाम दे रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग उसकी पैरवी करने लगे हैं। एक रिलेटिविज्म के नाम से एक मजहब है, लोग उसको फॉलो करते हैं। ज़्यादा यूथ जो नौजवान नस्ल है वो इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। रिलेटिविज्म इलाकियत के लिहाज से उनका ये ईमान है कि दुनिया में कोई भी मजहब मुकामिल नहीं है, दुनिया में कोई भी मजहब कामिल नहीं है। वो कहते हैं हम किसी भी मजहब के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं हम किसी भी बात के बारे में नहीं कह सकते कि ये 100% ठीक है। हम किसी भी ऐसे एक प्रोफेसर क्लास में लेक्चर कर रहा होता है और अपने स्टूडेंट से कहता है बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, दुनिया में कोई भी बात ऐसी नहीं जिस पर हम 100% यकीन कर सकें। उस प्रोफेसर ने क्या कहा? दुनिया में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिस पर हम 100% यकीन कर सके। तो उनका एक स्टूडेंट उठा और उसने कहा सर मेरा एक सवाल है। उसने कहा बेटा बोले। उसने कहा जो आप कह रहे हैं क्या हम इस पर 100% यकीन कर सकते? इसका मतलब है अगर हम किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकते तो हम इस बात पर भी यकीन नहीं कर सकते कि सारे मजहब में कमियां पाई। कोई है जो सच्चा मजहब, कोई है जो रास्ते का बयान करता है, कोई है जो इंसानियत को सही राह दिखाता है, और कोई है जो गुनहगारों की निजात का मंसूबा रखता है। कोई मजहब आपको निजात की ऑफर नहीं करता,
کوئی مذہب آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ نہیں دیتا. یہ واحد خدا اور اس کی محبت ہے, اس کا بیٹا یسوع ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا وعدہ دیتا ہے, اور یہ اپنے آپ میں کامل ہے. یہ کیا ہے؟ کامل ہے. پھر سبجیکٹیوزم ہے, داخلیت ایک تھوٹ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ابلیس نے ڈالی ہے, اور اس میں لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے. ایک وقت ہے جب کلیسیائیں جب خدا کلام سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو غلام کہا کرتے تھے خدا کا کلام فرماتا ہے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ غلام کے الفاظ ہوئے کہ کلیسیا ایسے چاہتی ہے, کلیسیا یہ فرماتی ہے, چرچ یہ کہتا ہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ غلام اسٹیج پر کھڑے ہوئے, منصب پر کھڑے ہوئے, کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے, میرے خیال سے یہ ایسے ہونا چاہیے. میرے چیزوں کسی خاتم کا کسی کا خیال بہتر اس خیال سے نہیں ہو سکتا. جو یہ خیال ہے ہمارے لیے آج بھی وہی خیال بہترین ہے. پھر ریشنلزم ہے, یہ بھی ایک مذہب ہے. دنیا میں لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. اور ریشنلزم کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ خدا کا وجود ثابت کرنا. اگر کوئی دلیل کے ساتھ ثابت کرے تو ٹھیک ہے, ہم نے ان لوگوں نے خدا کے لیے پیمانے رکھ لیے ہیں, خدا کو ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر ہمارے مطابق خدا ثابت ٹھیک ہو جائے تو خدا ہے, اور اگر خدا ہمارے مطابق ٹھیک ثابت نہ ہو تو خدا ٹھیک نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ دل میں یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں خدا کو دلائل کے ساتھ جاننا غلط ہے؟ کیا ہم دلیل دے کر خدا کو نہیں سیکھ سکتے؟ کیا یہ غلط ہے؟ تو میرے جیسو یہ غلط نہیں ہے. دیکھیں, ہم خدا کو دلیلوں کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے. ہم خدا کو دلیلوں کے ساتھ سیکھیں ضرور, لیکن اگر کہیں کبھی کسی لمحے پر خدا کے بارے میں آپ کی دلیل پوری نہ اترے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا خدا سے ایمان ہو. کیونکہ ہم دلیلوں کے خلاف خدا کی منادی نہیں کرتے, کیونکہ ہمارا خدا دلیلوں پر محیط نہیں, ہمارا خدا دلیلوں سے کہیں آگے بڑھ کر وجود ہے. کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی دلیل کے خلاف نہیں, وہ دلیلوں سے بڑھ کر خدا ہے. اور ایمانداروں کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہمارا خدا دلیلوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر. اور بہت سے پریگمیٹزم ہے, علمیت لوگ رہتے ہیں, جس کے پاس بڑا علم ہے اس کو سارے حل کریں گے چاہے وہ غلط علم ہو. تو علم ہونا کافی نہیں, ٹھیک علم ہونا بھی ضروری ہے. ایسے بہت سے مذاہب ہیں جنہوں نے دنیا میں وجود لیا. سارے مذاہب کو ابلیس کس طرح استعمال کر رہا ہے؟ میں نے کہا نوجوان نسلوں پر. آج ماں باپ کے لیے بچوں کو خدا پرست بنانا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ابلیس خیالوں پر کام کر رہا ہے کہ خدا بھلا نہیں ہے, خدا سچا نہیں ہے. آج نوجوان نسلیں اپنے ماں باپ سے, اپنے خدا سے سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا ایسا تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اگر خدا اس طرح ہے تو پھر یہ کام کیوں ہوا. ایک دفعہ ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ اگر خدا کو پتہ تھا کہ گناہ کے وسیلہ سے دنیا میں اتنی پریشانی اور بربادی آئے گی تو پھر خدا نے آدم اور ہوا کو چوائس کا حق کیوں دیا؟ پھر خدا نے آدم اور ہوا کو آزاد مرضی کیوں پیدا کیا؟ میں نے ان سے کہا کیا خدا کی یہ بڑی محبت نہیں کہ خدا جانتا تھا کہ میرے جلال کے خلاف اتنے کام ہوں گے, اس کے باوجود خدا نے انسان کو آزاد مرضی کری, اس کے باوجود خدا نے آپ کو چوائس دی ہے, آزادی دی ہے, چناؤ کا حق دیا ہے. اور یہ خدا کی محبت ہے. تو ماں باپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری اسلام جب اپنے بچوں کو بتائیں کہ چوری نہیں کرنی, ہمیں یہ نہیں کہنا کہ آپ چوری اس لیے نہ کریں کیونکہ یہ بری بات ہے. آپ اپنے بچوں سے کہیں چوری اس لیے نہیں کرنی کیونکہ خدا نہیں چاہتا. جب آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ زنا کاری نہیں کرنی تو یہ مت کہیں کہ زنا کاری غلط ہے, یہ میڈیکلی بڑا نقصان ہے. ان کو یہ بتائیں کہ خدا کہتا ہے کہ زنا کاری نہیں کریں. جب آپ اپنے بچوں کو نشے سگریٹ پینے سے منع کریں تو یہ مت کہیں کہ آپ کو لنگ کینسر ہو جائے گا, آپ کو اسٹمک کینسر ہو جائے گا, بلکہ ان کو بتائیں کہ خدا نہیں چاہتا آپ کوئی نشہ کرے. خدا کی الوہیت کو, خدا کے اختیار کو اپنے بچوں کے لیے پہلا درجہ دیں تو آپ کے بچے خدا کی فرما برداری میں بڑھنا سیکھیں گے. تیسرا جھوٹ جو ابلیس نے ہوا کے ساتھ بولا, پہلا جھوٹ کیا تھا کہ خدا بھلا نہیں ہے. دوسرا جھوٹ کہ خدا سچا نہیں ہے, دونوں مرنے والے نہیں ہو. تیسرا جھوٹ اس نے ہوا کے ساتھ جب یہ جملہ کہا کہ تم نہیں مرو گے, اسی میں یہ بھی جھوٹ شامل تھا کہ خدا نے تمہاری کوئی عدالت نہیں کرنی, اس گناہ کی کوئی سزا نہیں. آپ لوگ مزے سے پھرے. اور یہ خیال کبھی میرے بھی ذہن میں آیا ایک دفعہ, کیونکہ میں سوچتی تھی خدا اتنا محبت کا خدا ہے, خدا آخر میں کیسے لوگوں کو مار سکتا ہے, خدا کیسے اپنی موت لوگوں کو دے سکتا ہے. خدا تو محبت کا خدا ہے.
لیکن میرے عزیزوں آپ نے سنا ہے کہ خدا محبت ہے، آپ نے یہ بھی سنا خدا پاک ہے، آپ نے یہ بھی سنا کہ خدا مہربان ہے، آپ نے یہ بھی سنا کہ خدا رحیم ہے، لیکن اگر آپ نے یہ نہیں سنا کہ خدا منصف ہے تو ابھی تک آپ آدھے سچ سے واقف ہیں۔ اور میرے عزیزوں جو آدھا سچ ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، جو آدھا سچ ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ خدا جہاں محبت کا خدا ہے، جہاں وہ مہربانی کا خدا ہے، جہاں وہ شفقت کا خدا ہے، وہاں وہ راز بھی ہے۔ خداوند صادق ہے اور صداقت کو پسند کرتا ہے، وہ ایک بھی گناہ کو بغیر سزا کے نہیں چھوڑے گا۔ میری بات یاد رکھیے، خدا کبھی بھی اپنے عیسائی نبی کے سلسلے میں خدا فرماتا ہے میں اپنے جلال کو کسی بھی چیز کے لیے روا نہ رکھوں، ایک بھی چیز، کسی بت کے لیے، کسی معبود کے لیے، کسی جسمانی خواہش کے لیے خدا اپنا جلال روا نہ رکھے گا۔ خدا اس چیز کا حساب لے گا، خدا اس چیز کا حساب لے گا۔ اور خدا مسئلے پر کھڑے ہو کے اپنے لوگوں کو یہ بات سکھا نہیں پاتے کہ خدا کس قدر اپنے جلال کے لیے سنجیدہ ہے۔ جب خدا نے شریعت دی آدم اور حوا کو، جب خدا نے احکام دیے انسانیت کو، تو خدا نے وہ نصیحت نہیں کی تھی۔ لیکن جس شریعت کے بعد سزا نہیں ہے وہ شریعت نہیں، وہ نصیحت ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں آپ زیادہ یہ نہ کھائیے گا آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ آپ نے نصیحت کی، لیکن جب آپ کہتے ہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اگر آپ نے کیا تو میں آپ کو اس کی پنش دوں گا، یہ شریعت ہے۔ تو خدا نے ہمیں نصیحت نہیں کی، خدا نے شریعت دی ہے کہ جب میری بات نہیں مانو گے تو اس کا ایک نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور خدا اس بات کو نہیں بتاتے کہ لوگ اس بات کو جانے کہ خدا عدالت کرے گا ہمارے ہر چھپے اور ظاہری اعمال کو۔ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کبھی کیا مسیح یسوع میں باہر رہ کر اس کا خدا حساب دے گا۔ خدا کو اپنی کلیسیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح میں زندگی نہیں گزاریں گے تو آپ اپنی موت کے وارث ہوں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی یسوع کو دے دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اور اب دیت کو لے کے لوگوں نے ایک عجیب و غریب بھی لوگوں کی تھاٹ مسیحیت میں، چرچ میں ایسی تھاٹ بھی آ گئی ہے کہ ہمارے بھی جنم ہو گئے۔ اگر آپ کے اچھے اعمال ہیں تو آپ ایک اچھی شخصیت لے کر دوبارہ پیدا ہوں گے، اگر آپ کے اعمال برے ہیں تو آپ کوئی بھدا سا جانور بن کر پیدا ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ گوشت نہیں کھاتے یہ سوچ کر کہ اگر ہم KFC میں چکن کھائیں گے تو کوئی پتہ نہیں وہ ہمارا دادا ہو جو اب چکن بن کے پیدا ہوا ہے۔ وہ بلیو کرتے ہیں کہ پہلے وہ انسان تھا، اگلی دفعہ کوئی پرندہ بن کے پیدا ہو سکتا ہے۔ ابلیس کی تھاٹ چیک کریں، اس کا لیول چیک کریں کہ وہ کس لیول پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ کس طریقے سے جھوٹ بول کر لوگوں کو خدا کی شفقت سے دور کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی سچائی کو جانیں، اس کی محبت کو جانیں، کیونکہ وہ عظیم ہے، وہ بھلا ہے، وہ سچا ہے، وہ راست ہے، وہ صادق ہے۔ اور چوتھا جھوٹ جو ابلیس نے ہوا کے ساتھ بولا وہ یہ تھا، اچھی جو تیسرا جھوٹ ہے نا کہ کوئی عدالت نہیں ہونی۔ آج بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ خدا نے آخر میں سب کو معاف کر دیا، ایسا نہیں ہو، یہ غلط فہمی، یہ ابلیس کا جھوٹ ہے کہ خدا عدالت نہیں کرے گا، یہ جھوٹ ہے کہ خدا کسی کو سزا نہیں دے گا۔ میرے عزیزوں، خدا عدالت بھی کرے گا اور گنہگاروں کو سزا بھی دے گا، یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ پھر راست بازوں کے لیے کیا اجر ہے؟ اگر اینڈ پہ سب کو یروشلم مل جانا تو پھر جو راست بازا وہ کس لیے اتنی مصیبتوں میں زندگی گزارے؟ تو میرے عزیزوں، عدالت ہوگی۔ اگر کہیں نہ کہیں پلیز ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ خدا نے آخر میں سب کو معاف کر دینا، تو پلیز اس کو جاننے کے لیے پلیز کی طرف سے جھوٹا۔ چوتھا جھوٹ جو اس نے ہوا کے ساتھ بولا کہ خدا پرفضل نہیں ہے۔ چوتھی آیت کے بعد وہ 5 آیت میں کہتا ہے کہ تم ہرگز نہیں مرے گا، پھر کیا کہتا ہے؟ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ خدا کو ہوا سے کہتا ہے، خدا کو انسیکیورٹی ہے کہ جس دن آپ نے پھل کھایا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ آپ کی آنکھیں کھلیں گی تو کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان والے بن جاؤ گے۔ جب پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کیا ہوں گی؟ کھل جائیں گی۔ پہلے پلیز تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ جب تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی تو تم خدا کی مانند ہو جاؤ۔ بہت سے اسکالرس کہتے ہیں ہوا کا گناہ یہ تھا کہ اس نے ابلیس کے ساتھ نیگوشیٹ کیوں کیا، ابلیس کے ساتھ بات چیت کی کیونکہ یہ ہوا کا گناہ تھا۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں چلے اس نے نیگوشیٹ تو کیا، ہوا کو ابلیس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں چلے باتوں میں آئے بھی اس کو پھل نہیں کھانا چاہیے تھا کیونکہ خدا نے پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ اور بھی بہترین
लेकिन स्कॉलर्स ये थॉट बयान करते हैं कि हवा का गुनाह ये नहीं कि उसने इब्लीस से बातचीत की, हवा का गुनाह ये भी नहीं कि उसने उसकी बात मानी, उसका गुनाह ये भी नहीं कि उसने फल खाया। हवा का बुनियादी गुनाह ये था कि उसने इब्लीस के इस ख्याल को कबूल किया कि हम खुदा की माने हो सकते, खुदा के मुकाबले, खुदा का सा प्यार, खुदा की सी शख्सियत, इस ख्याल को कबूल करना गुनाह था। क्योंकि ये प्यार किसका है? इब्लीस का। ये इब्लीस का क्या था? आसमान पर उसने क्या कहा? खुदा के तख्त से भी ऊंचा तक बना हुआ है कि हाई फरिश्तों को साथ मिलाया। उनको क्या कहा कि खुदा भला नहीं है, फरिश्तों से कहा खुदा सच्चा नहीं है, फरिश्तों से कहा खुदा ने कोई अदालत नहीं करनी, और फिर उनसे कहा खुदा आपको खुदा चाहता है मेरी बस बात मानी जाए। तो भी जो खुदा है उसी की बात मानी जाएगी, और किसी की तो नहीं मानी जाएगी। या तो हम कहें कि वो खुदा नहीं, और अगर वो खुदा है तो फिर सारे प्यार उसके हैं, सारी हाकमियत उसकी है, सारी चीज उसकी है, सारा जलाल उसका है, सारी उम्र और कौमें उसकी है, पूरी दुनिया उसकी, सारी मामूली भी उसी की है। वो खुदा है। उसने हवा के दिल में बात डाली कि खुदा पुरफर्ज नहीं है। मेरे जो बाइबल मुकद्दस वाज़ह तौर पर कहती है तुम वैसे कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप। खुदा चाहता है उसके जैसे बने। पौलुस रसूल कहते हैं वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। खुदा चाहता है उसके जैसे हो, तो फिर फर्क कहाँ पे? फिर गुनाह कैसे हो? अगर खुदा भी चाहता है उसके जैसे हो, और अगर इब्लीस ने कहा कि तुम उसकी माने जाओगे, तो फिर ये गुनाह कैसे हो गया? इंग्लिश जुबान में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, लाइक गॉड और एज गॉड में फर्क। लाइक गॉड, खुदा चाहता है हम लाइक गॉड हो जाए, खुदा की तरह हो जाए, हमारे अंदर शफकत आ जाए, मोहब्बत आ जाए, मेहरबानी आ जाए, नेकी आ जाए, बर्दाश्त आ जाए। खुदा चाहता है खुदा की तरह हो जाए, लेकिन एज गॉड खुदा कभी बर्दाश्त नहीं करे, क्योंकि खुदा वाहिद हुआ है, वही वाहिद पूरी कायनात को पैदा करने वाला है। हम उसके एज गॉड होना गुनाह, और इब्लीस ने उनको ऑफर क्या दी थी? यू विल बी एज गॉड, जैसा खुदा है ना इख्तियार वाला, खालिक है, तुम लोग भी खालिक बन जाओ। खुदा की फरिश्ते इबादत करते हैं, तुम्हारी भी फरिश्ते इबादत करते हैं। हवा तुम अपना खुदा खुद बनना, तुम्हारा कोई खुदा नहीं, कोई तुम पर एक प्यार नहीं रखता। खुदा इस बात से हवा इनसिक्योर है कि अगर तुमने फल खाया तो तुम खुदा की मालिक हो जाए, और हवा ने इस ख्याल को कबूल किया। और यही आज भी लोगों के ज़हनों में इब्लीस यही ख्याल डाल रहा है कि आप अपने खुदा हैं। वो कहते हैं हवा भी खुदा है, दरख्त भी खुदा है, इंसान भी खुदा, मैं भी खुदा, आप भी खुदा, सारी चीजें ही खुदा। लोग ऐसी थॉट्स रखते हैं। आप कभी किसी के साथ बातचीत करें, लोगों के दिलों में सब कुछ ही खुदा है। फिर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मोहब्बत खुदा है। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ये अपनी मूवीज को हिट करवाने के लिए नौजवान नस्ल के ख्यालों में क्या बात डालते हैं कि मोहब्बत ही, बाइबल तो कहती है खुदा मोहब्बत खुदा नहीं। अगर मोहब्बत खुदा है तो 4 महीने बाद उन्होंने एक दूसरे पे जूतियां क्यों उठाई होती है? इस बात की समझ में, अगर मोहब्बत खुदा। मेरे से जो हमारी नौजवान नस्ल को इब्लीस इस तरह से वरगला रहा है कि मोहब्बत ही सब कुछ है, उसमें मजहब की कोई अहमियत नहीं, उसमें खुदा और उसके लोग होने की कोई अहमियत नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई किस मजहब का है, आपको मोहब्बत है तो चले जी। मैंने ये थॉट्स अपनी बड़ी करीब दोस्तों में देखी, बड़े लोगों में ये देखी, वैसे सोचते हैं मोहब्बत ही सब कुछ। और आपको बहुत सी मूवीज में ऐसा नजर आएगा कि लोग दूसरे मजाक के साथ शादी करते हैं, ये कहते हैं कि मोहब्बत से बड़ा कोई मजहब नहीं। फिर खुदा बनी इसराइल को क्यों मना करता था कि आपने अमालेकियों की बेटियों से शादी नहीं करनी, आपने अपने बेटों की उधर शादी नहीं करनी? क्यों खुदा मना करता था कि मुआवियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना? क्योंकि खुदा अपने लोगों को पूरी दुनिया में पाक और साफ और बेहतर कौन रखना चाहता था। आज भी खुदा ये चाहता है कि मेरे लोग दुनिया के लिए मिसाल हो, मेरे लोग पाक रहें, और जो लोग मसीह से जुदा हो गए हैं उनकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं। यीशु ने कहा जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। और मैं बड़ी माजरत के साथ इस बात को कन्फेस करूंगी कि हमारे मुआशरे में इस बात पर कोई सख्ती से माँ बाप भी एक्शन नहीं लेते। हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि आप मसीह हैं, आप शाही कानूनों का फिरका है, दूसरे लोग दूसरा मजहब आपके लिए मौत है, ये इब्लीस की तरफ से आपके लिए फंदा है ताकि आप अपनी जिंदगी के वारिस ना बन सके। आज हमारे बहुत से बेटे बहुत सी बेटियां दूसरे मज़ाहिब में जा चुके हैं, और मैं समझती हूँ दे आर लॉस्ट। हम उन्हें कभी वापस
हाँ, अगर खुदा कोई बेहतर मंसूबा कोई फजल के जरिए से मुमकिन करे, वरना हम जिस मुमलिकत में रहते हैं बड़ा मुश्किल है कि हम उनको रिकवर कर सकें। लेकिन खुदा चाहता है कि मेरे लोग जाने कि खुदा भला है, खुदा सच्चा है, खुदा रास्त है, और हर गुनाह का खुदा सजा देगा, हर गुनाह की सजा खुदा देगा और वो अदालत भी करेगा। हमें अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने खानदानों को ये बात बताना जरूरी है कि गुनाह जो है वो इब्लीस के चाल है। आखिर में हम इब्लीस के चार झूठों पर कैसे फतह पा सकते हैं? ये चार झूठ है। पहला झूठ क्या था उसका कि खुदा भला, दूसरा झूठ क्या था? सच्चा नहीं है। तीसरा झूठ क्या था? खुदा ने अदालत नहीं करनी, खुदा रास्त नहीं है। और चौथा झूठ कि खुदा पुरफज नहीं है। मेरे जीवन में एक सवाल का जवाब दीजिएगा, खुदा क्यों चाहेगा कि आप कैंसर से मरें? खुदा को इसमें कोई फायदा होगा? खुदा क्यों चाहेगा कि आप डायबिटीज में रहे सारी उम्र? खुदा क्यों चाहेगा कि आप बीपी सारा दिन चेक करवाते हो? खुदा को इससे कोई फायदा है? लेकिन किसी को फायदा है, किसी को फायदा है, और वो इब्लीस है। वो आपको बीमारियों में इसलिए डालता है कि आप खुदा का इनकार करें। आपके खुदा को मुझसे मोहब्बत है, तो खुदा को मुझसे मोहब्बत होती तो मुझे कैंसर होता। अगर खुदा को मेरी फिक्र होती तो आज मैं इतनी गुर्बत में होता। अगर खुदा को मेरी फिक्र होती तो मेरी औलाद नाफरमान होती। वो ऐसे सवालात हमारे दिलों में इसलिए डालता है, ऐसे हालात में हमें इसलिए डालता है कि हम खुदा की मोहब्बत का इनकार करें। मैंने कहा उसके इन चार झूठों पर फतह हासिल करने के लिए हमें बड़ा जरूरी है कि हम जाने खुदा का कलाम क्या फरमाता है। हमने पैदाइश से इस कलाम का आगाज किया था, मुकाशवा पर इख्तिताम करेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 12वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। और इब्लीस को इन दोनों किताबों से बड़ी नफरत होगी, यकीनन, क्योंकि पैदाइश ऐसी किताब है जिसने पहली दफा बताया कि इब्लीस के साथ क्या होता है, और मुकाशवा ऐसी किताब है जो बता रही कि अब क्या हो रहा है। सो उसके लिए दोनों किताबें लाल झंडियां हैं, ये दोनों किताबें उसके लिए बड़ा खतरा है। सो मुकाशवा की किताब उसका 12वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं, गौर से सुनिएगा। इसमें से 4 नकात हम सीखेंगे हम किस तरह इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं। जब वो आपके कान में डाले कि खुदा भला नहीं, तो आपको ये आयत मदद देगी। जब आपके दिल में इब्लीस ये बात डाले कि खुदा सच्चा नहीं, खुदा रास्त नहीं, खुदा पुरफज नहीं, खुदा आपकी फिक्र नहीं करता, तो ये आयत आपकी मदद करेगी। कलाम में लिखा है, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और वो बर्रा के खून, अब उन लोगों की बात हो रही है जो निजात याफ्ता है। वो कहता है वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम, दूसरी बात के सबब से उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा। 3 चीजें इस हवाले में मिल रही है। उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक के मौत भी गवारा। इस हवाले में 3 चीजें। सबसे पहले अगर आप इब्लीस के झूठों पर फतह पाना चाहते हैं, उसके झूठों पर गालिब आना चाहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं तो गरीब हूँ, खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, खुदा राज नहीं है, तो सबसे पहले अपने आप को उस कलवरी की फतह के पास ले, अपने आप को यीशु के लहू के नीचे ले, क्योंकि उसका लहू ही है वो कलवरी, वो सलीब। एक ऐसा लम्हा था जब इब्लीस के सारे झूठ एक्सपोज हो गए, जब उसके सारे झूठ सामने से आया। खुदा भला नहीं, तो सलीब पर खुदा की भलाई का सबूत यीशु ने दिया जब उसने अपनी जान दी। खुदा मोहब्बत का खुदा नहीं है, खुदा की मोहब्बत सलीब पर जाहिर जब उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि इंसानियत के गुनाहों का कफारा हो सके। उसने कहा कि खुदा रास्त नहीं, खुदा कोई अदालत नहीं करेगा, तो उसका ये झूठ भी गलत साबित हुआ जब खुदा ने अपनी अदालत अपने इकलौते बेटे पर की और मुझे और आपको गुनाहों से आजाद किया। ये वाहिद यीशु की सलीब है, यीशु का लहू है, बर्रे का लहू है जो हमें इब्लीस के झूठों से बचा सकता है। क्योंकि यीशु की सलीब और उसके लहू का बहाया जाना खुदा की मोहब्बत की निशानी, खुदा की मोहब्बत है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा। खुदा की मोहब्बत है कि यीशु ने हमारे लिए जान दी है, उसने सलीबी मौत गवारा की। ये उसकी मोहब्बत है। इब्लीस इस मकाम पर झूठा साबित हुआ। अगर आपकी जिंदगी में यीशु का लहू है, अगर आपकी जिंदगी में यीशु की सलीब है, तो इब्लीस झूठा साबित हो चुका है। दूसरा जो तरीका है उसके झूठों पर गालिब आने का, वो ये है कि आप उस जो है अपने कलाम की गवाही अपनी जिंदगी में रखें। कलाम की गवाही से मुराद ये नहीं कि
यीशु ने मेरे लिए ये किया, ये शख्सी गवाही की बात नहीं हो रही, ये इस गवाही की बात, इस कलाम की बात होगी। मुकाशवा का मुस्तकिल की बात वाज़ह करना चाहता है कि ईमानदार जब यीशु के लहू को कबूल करते हैं, उसके बाद इब्लीस के झूठों पर गालिब आने के लिए ये किताब उनकी मदद। इसको खुद से जुदा ना हो, इसे पढ़ें, इसका मुताला करें, इसको जानें, इसको सीखें। ये आपको बताती है कि इब्लीस झूठ का बाप है। जब जब आपके कान में झूठ बोलेगा तो आप उसे कहेंगे है इब्लीस दूर रहो, क्योंकि मेरा खुदा भला है, मेरा खुदा मोहब्बत वाला। और फिर तीसरी बात मुकाशवा का मुसन्निफ लिख रहा है कि वो जिन्होंने अपनी जान को भी अजीज ना समझा, कमिटमेंट मुसलमा इरादा, पक्का इरादा, खुदा की वफा ने मौत भी गवारा। मेरे चीजों, हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम जानते हैं उसने हमसे मोहब्बत की, उसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, हमने उसकी लहू को भी कबूल किया। हम कलाम मुकद्दस का मुताला भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, क्योंकि ये वो रोशनी है जो इब्लीस के झूठों को हमारे सामने वाज़िया कर सकती है। तो तीसरी चीज बड़ी जरूरी है, वो हमारा कमिटमेंट है। आज से अहद कर लें कि कुछ भी हो जाए खुदा की जात पर सवाल नहीं है। वो हमारा सदरक में से कब्ज़ झूठ जैसा ईमान होना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा देख बादशाह, हम तुझे सिजदा नहीं करेंगे। उसने कहा इनको आग की भट्टी में डाल दो। उसने कहा देख बादशाह, हमारा खुदा हमें आग की भट्टी से बचाने की कुदरत, वो हमें बचा सकता है। बादशाह, हमारा जो खुदा है ना, जिसको हम सिजदा करते हैं, वो इस आग की भट्टी से हमें बचा सकता है। फिर वे एक और बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं, लेकिन अगर खुदा ना भी बचाए तुझे सजदा हम नहीं करेंगे। हालेलुया। वो कहते हैं ना भी बचाए तो हम फिर भी तुझे सजदा नहीं करेंगे। आज ईमानदारों के पास इस ईमान की जरूरत है कि आप गरीब हो, आप बीमारी में हो, आप लाचारी में हो, आप तकलीफ में हो, आप कहें कि प्लीज मैं अपने यीशु का इनकार नहीं करूंगा। मेरा खुदा मेरा है, मेरा खुदा राज है, मेरा खुदा साबित है, वो सदाकत में पसंद करता है, और सबसे बढ़कर मेरा खुदा फर्ज का खुदा है, क्योंकि उसने मेरे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इब्लीस के इन चार झूठों से बचने का तरीका सिर्फ ये है, पहले यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में, उसके कलाम को सीखें, उसके कलाम की रोशनी को अपनी जिंदगी में रखें। आखिरी और तीसरी बात कि हम इस बात के लिए कमिटेड हो जाए, फैसला कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई चीज हमें यीशु की मोहब्बत से जुड़ा, कोई इब्लीस की चालाकी हमें दुआ करने से ना रोके, हमें चर्च आने से ना रोके, हमें खुदा की डायरेक्टली देने से ना रोके। हम खुदा के साथ वफादारी में कायम रहें, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसके फरमा बताएं। किसी भी हालत में हम अपनी वफादारी पर कम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि वहाँ पे मुकाशवा का मुसन्निफ भी गवाही दे रहा है कि उन्होंने मौत भी गवारा। आइए हम सब अपने सर को झुकाते अपने आंखों को पढ़ते खुदा की पाक हुजूरी, आज अपने आप को उसके हुजूर को कनेक्ट करें, कहें कि खुदावन तू राज है, खुदावन तू भला है, खुदावन तू सच्चा है, तू आदिल है, तो मन से हम तेरी तारीफ से बात को कबूल करते हैं। इब्लीस के सारे झूठों पर गवाही पाते हैं, क्योंकि तेरी सलीब, तेरा लहू इस बात की गवाही है कि वो झूठा है, क्योंकि तेरी मोहब्बत सलीब पर निभाई। हमारे से खुदावन के साथ वफादार रहने का आहद करें कि वो अपनी वफादारी में हमें ग्रो करना, बढ़ना सिखा। हम सब पूरी कलीसिया में से यीशु की मोहब्बत में बढ़े। खुदा एक रूह को जान लो, इब्लीस के झूठों से, चालाकियों से, मकारियों से नौजवान नस्ल को इब्लीस के मंसूबों से लगाओ। हमारी महफूज रहे नस्लें, हमारे खानदान, ईमानदार बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, हर एक जान खुदावंद इब्लीस के चार झूठों पर गालिब आए और तेरे बेटे यीशु का सारा इज्जत चला ले। बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। इस खूबसूरत कलाम के लिए एक दफा जोरदार तालियां बजाएंगे। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं ऐसे उस्तादों के लिए जो हमें बड़ा ही प्योर कलाम सुनाते हैं। इसके वसीले से हम बहुत ज़्यादा सीखने में मैच्योर होते हैं और खुदा को अपनी जिंदगी में आने देते हैं। हम खुदा के जलाल में आगे बढ़ेंगे और एरन भाई के रहनुमाई में गीत गाएंगे। इसी दौरान अपने हदीस ज़ालिम भी इसके हुजूर में पेश करेंगे।
दुनिया दे हर थाते जाके असी दसना सुरी उते जान के गीता सुना रोने नाल करे जान रोने नाल करे जान यीशु दे हवाले जान रोने नाल करे जान रोने नाल करे जान यीशु दे हवाले जान यीशु दे हवाले जान रहे प्यारे गाने रहे प्यारे गाने यीशु दे हवाले जान यीशु दे हवाले जान दुनिया दे हर थाते जाके असी दसना सुरी उते जान के गीता सानू अपना दुनिया दे हर थाते जाके असी दसना सुरी उते जान के गीता सानू अपना गीता सानू अपना ओदा प्यार करना ओदा प्यार करना यीशु दे हवाले जान यीशु दे हवाले जान हालेलुया रोने नाल करूं रोने नाल करूं यीशु दे हवाले जान यीशु दे हवाले जान यीशु दे हवाले जान पापा वाली जिंदगी जान यीशु सानू लड़या ओ लड़या सोना सानू किते नहीं जला गया पापा वाली जिंदगी जान यीशु सानू लड़या ओ लड़या सोना सानू किते नहीं जला गया किते नहीं जला गया मेरे नाम दे आगे हमारे शुक्रगुजार हैं कि आपने आज की सारी इबादत के अफ्तर के सेशन के लिए फिलहाल डॉक्टर लियाकत साहब से दरख्वास्त है कि खुदा के मज़हब पर आएंगे और आज हमारे दरमियान एक नया छोटा सा मेंबर भी आया है दाऊद भाई और सिद्धाबाजी से दरख्वास्त है कि अपनी बेटी को अपने सामने लेकर आइएगा। हम खुदा ने बेटी जैसी बरकत से नवाजा है तो हम इस छोटी बेटी को इसके माँ बाप के साथ जोरदार तालियों में वेलकम भी करेंगे। डॉक्टर लियाकत साहब से दरख्वास्त है कि इस नन्ही बेटी को मसा करने में रहनुमाई करेंगे। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती रसूल की बात करने के लिए जीवन इसमें बात की देर में पढ़ने लगा। उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे
बनवा दे, मगर शिकस्तों ने उन्हें छिड़का, लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाह ऐसा। हालेलुया। बेटा दाऊद और मिस्र दाऊद, आज आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जा रही है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बेटी को महसूस करूं, तो चंद सवालों को जवाब दिया। क्या आप जानते हैं कि ये बेटी खुदा की तरफ से आपको तोड़ने के बाद मिली? क्या आप जानते हैं कि ये बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं, बल्कि खुदा ने आपको दी है, और आप अपनी जिंदगी से इसकी बेहतरीन परवरिश करेंगे? क्या आप अपने घरेलू माहौल से इसके लिए ऐसे माहौल पैदा करेंगे कि ये जिस तरह धूल और गोश्त में पड़ती, खुदा के जलाल और रहमान में पड़ती हुई कौम से जिंदगी में का सबब है? हमें पेट को देखिए। खुदा के तेज पड़ते जो तेज खुदा के निकाह में तेरे लोगों को बात करता, जब खुदा को बेटी पड़ेगा उसके माँ बाप का जलाया जाए तो देश की सारी और उनके ये सोचते आमीन आमीन। खुदा बस इसराइल अपने बच्चों को इस तरह से बंद कर दो, बेटी आए खुदा तुझे बंद कर दो और तुझे खुदा अपने चेहरे का रोज तुझे बंद कर और तुझ पर खुदा अपना चेहरा और तुम्हें सलाम आमीन। मैं अपनी आंखें तेज करता हूँ, देख जिस तरह से गुलामों की आंखें अपने आप कर और लंबी की आंखें अपने बेटे की बात की तरफ लगी रहती, हमारी आंखें तेज तरफ लगी रहती जब तक तो हम